Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, cell structure and function. Warm-up exercise. You have already known about the living and non-living things. You have also learned that living things do certain functions. Can you recall that functions and list them? तो आपको ये functions आप यहाँ पे लिखेंगे. Do you know how these organisms do these functions? These organisms do these functions with the help of organs, and further, these organs are made from the cells. Actually, cells are like bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. अच्छा, ये organism जो ये functions कैसे करते हैं? तो ये organs की help से करते हैं. फिर ये आपके ऑर्गन्स जो ये सेल से बने होते हैं. सेल्स आपके ब्रिक्स की तरह होते हैं. जैसे एक बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, सेम हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है. Discovery of cells. During the 1660s, an English naturalist called Robert Hooke designed a microscope. It was not unlike simple school microscope that we use today and relied on sunlight to illuminate the image. In 1665, Hooke made an 40-year observation while looking at a thin slice of cork. He saw something that he described as looking like a honeycomb with a great many little boxes. Hooke called these boxes cells, from the Latin for little room. एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे रॉबर्ट हुक. उन्होंने एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था. तो ये जो माइक्रोस्कोप था सनलाइट की हेल्प से ये इमेज को इल्यूमिनेट करता था. फिर 1665 ने उन्होंने एक डिस्कवरी की सेल की. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पतला सा स्लाइस था कॉर्कस में देखा. उन्होंने देखा कि इसमें कुछ हनी कॉम जैसा है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं. तो इन बॉक्सेस को उन्होंने नाम दिया सेल्स, जो कि आपका लैटिन से वर्ड आता है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. सो कॉर्क सेल्स आर ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी इन सेल्स की. This was the first time that anyone realized that living things are not necessarily made of continuous material. People thought that the skin was made of a uniform substance and had no idea that it was made of much smaller constituent parts. The discovery caused great excitement in the scientific community. Cells are often described as the units of life or the building blocks of life. These descriptions are very useful because they emphasize that these structure units built together to form all living organisms. तो ये फर्स्ट टाइम था जब रियलाइज़ किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपके किसी कंटिन्यूस मटेरियल से नहीं बने. तो लोगों को ऐसा लगता था स्किन जो एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस से बनी है, उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि इसके और भी छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हैं. तो सेल्स को डिस्क्राइब किया जाता है एज यूनिट्स ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. द सेल्स. लिविंग सेल्स आर डायनामिक एंड हैव सेवरल थिंग्स इन कॉमन. A cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. All cells have an outer covering called a cell membrane. Inside every cell is a gelatin-like material called cytoplasm. In the cytoplasm of every cell is hereditary material that controls the life of the cell. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. The organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. आपके देखिए जो cells हैं ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इनमें एक आउटर कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हर सेल के अंदर एक जिलेटिन जैसा मटेरियल होता है जिसे कहता है साइटोप्लाज्म. ओके, और साइटोप्लाज्म में इन आपके हर सेल के साइटोप्लाज्म में एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि सेल की लाइफ को कंट्रोल करता है. बहुत सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हैं. इनके ऑर्गन्स भी वेरी करते हैं शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स में. Number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the whale? The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. Different groups of cells perform a variety of function. अगर हम बात करें कि कितने सेल्स होते हैं तो देखिए जो नंबर ऑफ सेल्स हैं आपके ये बिलियंस और ट्रिलियंस में होते हैं. ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनकी शेप एंड साइज आपके डिफर करते हैं. एंड ऑफ कोर्स इनका जो फंक्शन है वो भी आपका डिफरेंट है. सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और सिंगल सेल ओनली. दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर. These organisms has a large surface area to volume ratio and rely on simple diffusion to meet their needs. An example of a unicellular animal is amoeba. वो एनिमल जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इनकी जो बॉडी में है वो एक सिंपल डिफ्यूजन होता है जिससे कि वो अपनी नीड्स को मीट करते हैं. और एग्जाम्पल आपका यूनिसेलुलर
एनिमल का अमीबा. All 7 life processes take place inside this one cell. Amoebas are found in ponds and ditches. They move by changing their shape. They push out pseudopodia in the direction they want to move, and the rest of the cell flows after them. Amoeba feed on smaller organisms such as bacteria. The pseudopodia flow around the food, engulfing it. The food is then taken into the cytoplasm in a food vacuole. Enzymes further break down the food. अब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि जो 7 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ये एक सेल के अंदर ही होते हैं. तो अमीबा आपके पॉन्ड या डिचेस में पाए जाते हैं. ये मूव करते हैं अपनी शेप को चेंज करके. ये सूडोपोडिया को पुश करते हैं. सूडोपोडिया इसके फॉल्स फीट होते हैं. ओके. एंड अमीबा जो है ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया. सूडोपोडिया जो है आपका फ्लो करता है फूड के अराउंड, देन उसको इनगल्फ करता है. फिर वो साइटोप्लाज्म में जाता है इन अ फूड वैक्यूल. फिर एंजाइम्स जो होते हैं इस फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं. Multicellular organisms are those which are made up of many cells. Humans are multicellular. Multicellular organisms can be much larger and more complex. This is because the cells of the organism have specialized into many different types of cells such as nerve cells, blood cells, muscle cells, all performing different functions. अब मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से बने, जैसे कि ह्यूमन है मल्टी सेलुलर है. अब इसमें क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म ये लार्जर होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. इसमें आपके जो होते हैं स्पेशलाइज्ड योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है. Boil a hen's egg. Remove the shell. What do you observe? A white material surrounds the yellow part. White material is albumin, which solidifies on boiling. The yellow part is yolk. It is part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. हैन का एग आपने देखा होगा, आई एम श्योर खाया भी होगा. उसको बॉईल करना है, इसका शेल रिमूव करना है, तो उसमें आपको 2 पार्ट नजर आएंगे. एक आपका होगा व्हाइट पार्ट. व्हाइट पार्ट को कहते हैं एल्बुमिन एंड दिस इज द येलो पार्ट जिसे कहा जाता है यॉक. और ये आप बिना मैग्नीफाइंग डिवाइस के भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये आपका सिंगल सेल है. Shape and size of cells. Cells come in many sizes. A nerve cell in your leg could be a meter long. A human egg cell is no bigger than a dot. A human red blood cell is about 1/10 the size of a human egg cell. A bacterium is even smaller. 8,000 of the smallest bacteria can fit inside one of your red blood cells. A cell's shape might tell you something about its function. The nerve cell has many fine extensions that send and receive impulses to and from other cells. Though a nerve cell cannot change shape, muscle cells and some blood cells can. In plant stems, some cells are long and hollow and have openings at their ends. These cells carry food and water throughout the plant. अब देखिए सेल्स आपके अलग अलग साइज में आते हैं, जैसे कि नर्व सेल जो कि आपके लेग में होता है वो 1 मीटर लंबा हो सकता है. ह्यूमन एग सेल आपका जो है वो एक डॉट से बड़ा नहीं होता. और जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है वो ह्यूमन एग का 1/10 है साइज में, जबकि जो बैक्टीरियम है वो और भी ज़्यादा छोटा है. वो आपके मतलब 8,000 स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया हैं वो एक रेड ब्लड सेल में आपके फिट हो सकते हैं. तो सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के बारे में बताता है. जैसे कि नर्व सेल में बहुत सारे फाइन एक्सटेंशंस हैं जो कि इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं टू एंड फ्रॉम अदर सेल्स. तो नर्व सेल के थ्रू नर्व सेल जो हैं आपके शेप चेंज नहीं कर सकते हैं. मसल सेल्स और जो ब्लड सेल्स हैं वो शेप आपकी चेंज कर सकते हैं. प्लांट स्टेम में कुछ सेल्स आपके लंबे होते हैं, हॉलो होते हैं, कुछ की ओपनिंग्स होती हैं उनकी एंड्स में, और ये सेल्स क्या करते हैं, फूड एंड वाटर को थ्रू आउट द प्लांट कैरी करते हैं. इन प्लांट स्टेम सम सेल्स आर लॉन्ग एंड हॉलो एंड हैव ओपनिंग्स एट देयर एंड्स. दीज सेल्स कैरी फूड एंड वाटर थ्रू आउट द प्लांट. टाइप्स ऑफ सेल्स. Scientists have found that cells can be separated into 2 groups. One group has no membrane-bound structures inside the cell, and the other group does. Cells without membrane-bound structures are called prokaryotic cells. Cells with membrane-bound structures are called eukaryotic cells. जब साइंटिस्ट ने सेल्स को 2 ग्रुप्स में सेपरेट किया, एक ग्रुप जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, दूसरे में नहीं होता है. तो वो सेल जो बिना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के उन्हें कहा जाता है प्रोकार्योट सेल. एंड जिन सेल्स में आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है उन्हें कहते हैं यूकार्योटिक सेल्स. Parts of the cell. Every cell has many parts. Cell wall. Just like a shop that is located inside the walls of a building, some cells are enclosed in a cell wall. The cells of plants, algae, fungi and most bacteria are enclosed in a cell wall. Cell walls are tough, rigid outer coverings that protect the cell and give it shape. जैसे आपकी शॉप आपकी एक
लोकेटेड होती है इनसाइड द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग। तो कुछ सेल्स जो आपके होते हैं वो सेल वॉल के अंदर इनक्लोज होते हैं। आपके जैसे सेल्स ऑफ प्लांट्स है, एल्गी, फंगी या बैक्टीरिया, ये सेल वॉल के अंदर इनक्लोज होते हैं। सेल वॉल्स आपके टफ होते हैं, इनके रिजिड आउटर कवरिंग्स होती हैं जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती हैं और उसको शेप प्रोवाइड करती हैं। अ प्लांट सेल वॉल मोस्टली इज मेड अप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज. The long thread-like fibers of cellulose form a thick mesh that allows water and dissolved materials to pass through it. Cell wall also contain pectin, which is used in jam and jelly, and lignin, which is a compound that makes cell walls rigid. Plant cells responsible for support have a lot of lignin in their walls. The protective wall of a plant cell is outside the cell membrane. अब प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो आपकी मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है जिसे कहा जाता है सेल्यूलोज। तो जो लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं सेल्यूलोज के, वो थिक मैश बनाते हैं जो कि वाटर और डिजॉल्व मटेरियल को अलाउ करते हैं कि वो पास हो। आपकी जो सेल वॉल्स होती है उसमें पैक्टिन होता है जिसको जैम एंड जेलीज में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से लिग्निन होता है कंपाउंड जिससे कि जो सेल वॉल्स हैं आपकी वो रिजिड बनती हैं। तो जो प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो आपका क्या होता है, इज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। एक्टिविटी 1. In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb, remove the dry pink coverings, peels. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. You can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place a small piece of the thin onion peel in a drop of water on a glass slide. The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of a blade or forceps. Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. While placing the cover slip ensures that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the site under the microscope. आपको अगर सेल का कोई बेसिक कंपोनेंट आपने ऑब्जर्व करना है तो अनियन बल्ब लेना है, उसका जो पिंक कवरिंग होता है पील उसको रिमूव करना है। इसको आप ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, इसका जो फ्लैश वाइट लेयर होता है बल्ब का फॉरसेप की हेल्प से, अपने हैंड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अनियन बल्ब को ब्रेक कर सकते हैं, उसकी थिन लेयर को सेपरेट कर सकते हैं। फिर एक स्मॉल पीस ऑफ जो थिन अनियन पील है उसको आपने ग्लास स्लाइड में रखना है इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। फिर ये जो थिन लेयर है इसको कट भी किया जा सकता है छोटे छोटे पीसेस में ब्लेड या फॉरसेप्स की हेल्प से। अब आप इसमें ड्रॉप डालेंगे मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन की लेयर में और एक कवर स्लिप में प्लेस कर देंगे। तो जब आप कवर स्लिप को प्लेस करेंगे तो ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे कोई भी एयर बबल्स ना हो कवर स्लिप के अंडर। फिर स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। सेल मेम्ब्रेन, द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड ऑल सेल्स इज अ सेल मेम्ब्रेन। इफ सेल हैव सेल वॉल्स, द सेल मेम्ब्रेन इज इनसाइड ऑफ इट। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड द सेल उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन्स। अगर सेल के सेल वॉल्स हैं तो सेल मेम्ब्रेन इसके बाहर होता है। The cell membrane regulates interaction between the cell and the environment. Water is able to move freely into and out of the cells through the cell membrane. Food particles and some molecules enter and waste products leave through the cell membrane. A cell membrane is made up of a double layer of fat-like molecules. अब water जो है वो freely move करता है into and out सेल के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। फूड पार्टिकल्स हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं एंटर करते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही लीव करता है। सेल मेम्ब्रेन आपका बना होता है डबल लेयर ऑफ फैट लाइक मॉलिक्यूल्स से। साइटोप्लाज्म, cells are filled with a gelatin-like substance called cytoplasm that constantly flows inside the cell membrane. Many important chemical reactions occur within the cytoplasm. Throughout the cytoplasm is a framework called the cytoskeleton which helps the cell maintain or change its shape. Cytoskeletons enable some cells to move. An amoeba, for example, moves by stretching and contracting its cytoskeleton. The cytoskeleton is made up of thin hollow tubes of protein and thin solid protein fibers. Proteins are organic molecules made up of amino acids. सेल में आपका एक जिलेटिन जैसा सब्सटेंस होता है जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो आपका कॉन्स्टेंटली सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लोट करता रहता है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपकी होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एक आपका फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं साइटोस्केलेटन, जो कि सेल को मेंटेन करने में और उसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन जो है कुछ सेल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं और अमीबा जैसे कि आपका वो सूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है ना, वो स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने साइटोस्केलेटन को। तो साइटोस्केलेटन जो है आपके थिन हॉलो ट्यूब्स ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, सॉलिड प्रोटीन फाइबर से। प्रोटीन्स आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं।
Cytoskeleton, a network of fibers in the cytoplasm, gives cell structure and help them maintain shape. Cytoskeleton का एक और फंक्शन होता है कि वो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसका शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. Most of a cell's life processes occur in the cytoplasm. Within the cytoplasm of eukaryotic cells are structures called organelles. Some organelles process energy and others manufacture substances needed by the cell or other cells. Certain organelles move materials while others act as storage sites. Most organelles are surrounded by a membrane. The nucleus is usually the largest organelle in a cell. तो ज़्यादातर जो सेल की जो लाइफ प्रोसेस होती है आपकी साइटोप्लाज्म में होती है. तो साइटोप्लाज्म आपका जो यूकारियोटिक सेल्स का होता है, इनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनेलीज. तो कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो एनर्जी प्रोसेस करते हैं, जबकि कुछ ऐसे सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर करते हैं जो सेल या दूसरे सेल्स की जिनको ज़रूरत होती है. तो जो सर्टेन ऑर्गेनेलीज हैं वो मटेरियल्स को मूव करती हैं, जबकि कुछ स्टोरेज साइट की तरह एक्ट करती हैं. आपके जो ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन से आपके सराउंडेड होते हैं. एंड जो न्यूक्लियस है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल में. Nucleus. The nucleus is like the daily manager who directs the store's daily operations and passes on information to employees. The nucleus directs all cell activities and is separated from the cytoplasm by a membrane. Materials enter and leave the nucleus through openings in the membrane. The nucleus contains the instructions for everything the cell does. अब न्यूक्लियस जो एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है, जो कि आपके स्टोर के डेली ऑपरेशंस को पास करता है, इन्फॉर्मेशन देता है अपनी एम्प्लॉयज़ को. तो न्यूक्लियर भी क्या करता है कि जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डायरेक्ट करता है. एंड ये आपका सेपरेटेड होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन. मटीरियल जो है एंटर करते हैं, लीव करते हैं न्यूक्लियस में इन ओपनिंग्स के थ्रू जो आपके मेम्ब्रेन में होती हैं. These instructions are found on long thread-like hereditary material made of DNA. DNA is a chemical that contains the code for the cell's structure and activities. During cell division, the hereditary material coils tightly around proteins to form structures called chromosome. A structure called a nucleolus also is found in the nucleus. अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी लॉन्ग थ्रेड लाइक हेरिडिटरी मटेरियल में होती हैं, जिस आपका जो बना होता है डीएनए से. डीएनए आपका एक केमिकल है जिसमें आपका कोड होता है सेल के स्ट्रक्चर उनकी एक्टिविटीज़ के लिए. तो जब सेल डिवीजन होता है तो जो हेरिडिटरी मटेरियल है ना वो टाइटली कॉइल हो जाता है अराउंड प्रोटीन, जिससे वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं क्रोमोसोम्स. Energy processing organelles. Cells require a continuous supply of energy to process food, make new substances, eliminate wastage, and communicate with each other. In plant cells, food is made in green organelles in the cytoplasm called chloroplast. Chloroplasts contain the green pigment chlorophyll, which gives many leaves and stems their green color. अब सेल को एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है फूड को प्रोसेस करने के लिए, नया सब्सटेंस बनाने के लिए, वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. तो प्लांट सेल में फूड जो है आपका ग्रीन ऑर्गेनेलीज में बनता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो लीव्स जिसका यूज़ करके फिर अपना खाना बनाते हैं. Chlorophyll captures light energy that is used to make a sugar called glucose. तो क्लोरोफिल का फंक्शन होता है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जिसके बाद जो प्लांट्स हैं वो शुगर बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज. क्लोरोप्लास्ट यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्टोर द कैप्चर्ड लाइट एनर्जी एज केमिकल एनर्जी. Many cells, including animal cells, do not have chloroplasts for making food. They must get food from the environment. The energy in food is stored until it is released by the mitochondria. अब देखिए आपके एनिमल सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो इनको फूड कहाँ से मिलता है? इनके इन्वायरमेंट से. तो जो एनर्जी होती है फूड में वो स्टोर्ड होती है जब तक कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को रिलीज नहीं करता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेलीज वेयर एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Just as the gas or electric company supplies fuel for the shop, a mitochondrion releases energy for use by the cell. Some types of cells, such as muscle cells, are more active than other cells. These cells have large number of mitochondria. Mitochondria release energy that is needed by the cell from food. Mitochondria आपके ऑर्गेनेलीज होती हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जब फूड आपका ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को रिलीज करता है फॉर यूज बाय द सेल. अच्छा, कुछ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जैसे कि मसल सेल्स, ये आपके ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली अदर सेल्स. तो इन सेल्स में आपके लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि सेल को ज़रूरत होती है फ्रॉम फूड. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनेलीज.
One substance that takes part in nearly every cell activity is protein. Proteins are part of cell membranes. Other proteins are needed for chemical reactions that take place in the cytoplasm. Cells make their own proteins on small structures called ribosomes. Even though ribosomes are considered organelles, they are not membrane bound. Some ribosomes float freely in the cytoplasm. Others are attached to the endoplasmic reticulum. Ribosomes are made in the nucleolus and move out into the cytoplasm. Ribosomes receive directions from the hereditary material in the nucleus on how, when and in what order to make a specific protein. अच्छा देखिए, एक सब्सटेंस जो कि हर सेल एक्टिविटी में पार्ट करता है, दैट इज प्रोटीन. तो प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है. अदर प्रोटीन्स को भी ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन के लिए जो आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं. तो सेल अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें कहते हैं राइबोसोम्स. हालांकि जो राइबोसोम्स हैं उनको ऑर्गेनेलीज कंसिडर किया जाता है, बट ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. कुछ जो राइबोसोम्स हो तो फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं. राइबोसोम जो है ये आपके न्यूक्लियस में बनते हैं एंड देन मूव आउट इनटू द साइटोप्लाज्म. राइबोसोम्स रिसीव करते हैं डायरेक्शन आपके हेरिडिटरी मटेरियल से जो आपके न्यूक्लियस में होता है कि कब, कहाँ और किस ऑर्डर में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है. Processing, transporting and storing organelles. The endoplasmic reticulum extends from the nucleus to the cell membrane. It is a series of folded membranes in which materials can be processed and moved around inside of the cell. It takes up a lot of space in some cells. The endoplasmic reticulum may be rough or smooth. Endoplasmic reticulum that has no attached ribosome is called smooth endoplasmic reticulum. This type of endoplasmic reticulum processes other cellular substances such as lipids that store energy. Ribosomes are attached to areas on the rough endoplasmic रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है. ये सीरीज है फोल्डेड मेम्ब्रेन्स की जिसमें आपका मटेरियल प्रोसेस होता है, देन ये मूव करता है इनसाइड द सेल. ये बहुत सारा स्पेस ले लेता है कुछ सेल्स में. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ भी हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके राइबोसोम के साथ अटैच नहीं है वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो इस तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोसेस करता है बाकी सेलुलर सब्सटेंस को, जैसे कि लिपिड्स को, जो कि एनर्जी को स्टोर करते हैं. राइबोसोम्स आपके जो अटैच होते हैं ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. देयर दे कैरी आउट देयर जॉब ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स दैट आर मूव्ड आउट ऑफ द सेल्स और यूज्ड विद इन द सेल्स. और यहाँ पे अपना जॉब करते हैं प्रोटीन बनाने का, जो कि आपके फिर आपके सेल से बाहर निकलते हैं और फिर विद इन द सेल आपके यूज हो जाते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपके कॉम्प्लेक्स सीरीज है मेम्ब्रेन्स का सेल के साइटोप्लाज्म में. After proteins are made in a cell, they are transferred to another type of cell organelle called the Golgi bodies. The Golgi bodies are stacked, flattened membranes. The Golgi bodies sort proteins and other cellular substance and package them into membrane-bound structure called vesicles. The Golgi body packages materials and moves them to the outside of the cell. अच्छा, अब जब आपके प्रोटीन बन जाते हैं सेल में तो फिर ये ट्रांसफर होते हैं दूसरे टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल जिन्हें कहा जाता है गोल्गी बॉडीज. तो गोल्गी बॉडीज आपके स्टैग्ड होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होते हैं. ये आपके प्रोटीन को सॉर्ट करते हैं और दूसरे सेलुलर सब्सटेंस को एंड पैकेज करते हैं फिर इनको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में जिन्हें कहते हैं वेसिकल्स. गोल्गी बॉडी पैकेज करती है मटेरियल्स को एंड फिर ये मूव करती है आउटसाइड ऑफ द सेल. The vesicles deliver cellular substance to areas inside the cell. They also carry cellular substances to the cell membrane where they are released to the outside of the cell. Just as a deli has refrigerators for temporary storage of some of its foods and ingredients, cells have membrane-bound spaces called vacuoles for the temporary storage of materials. A vacuole can store water, waste products, food and other cellular materials. In plant cells, the vacuole may make up most of the cell's volume. अब वेसिकल्स क्या करते हैं, ये सेलुलर सब्सटेंस को डिलीवर करते हैं टू एरियाज इनसाइड द सेल. ये सेलुलर सब्सटेंस को भी कैरी करते हैं सेल मेम्ब्रेन तक जहाँ पे इनको रिलीज किया जाता है आउटसाइड द सेल. अच्छा, इसके बाद आपके जैसे कि सेल्स में आपके कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं जिन्हें कहा जाता है वैक्यूल्स. यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होता है मटेरियल्स का. वैक्यूल आपका वाटर स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट, फूड या दूसरे सेलुलर मटेरियल्स. प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं ये ज़्यादातर सेल का वॉल्यूम ये यहाँ पे कवर करते हैं. कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इफ यू रिकॉल, you should be able to compare plant and animal cells. Observe the plant and animal cell carefully given below.
Let's just tabulate the similarities and distinguished features of plant and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table given below. Refer to these diagrams of a typical animal cell, this one, and plant cell as you read about cell structures and their function. तो देखिए कंपैरिजन किया गया है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में आपका प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में ये एब्सेंट है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो present in both the cells. Cytoplasm is also present in both plant cell and animal cell. Plastids are present in animal cell whereas absent in animal cell. Vacuole is present in plant cell whereas absent in animal cell. So ये आपका difference है, comparison है plant cell and animal cell का. Notes for the chapter. Organs are made up of still smaller parts. The smallest living part of an organism is a cell. All cells have an outer covering called a cell membrane. Number of cells also varies from organism to organism. Cells can be classified as prokaryotic or eukaryotic. Each cell in your body has a specific function. Most of a cell's life processes occur in the cytoplasm. In a many-celled organism, several systems work together to perform life functions. Plant cells differ from animal cells in having an additional layer around the cell membrane termed cell wall. Colored bodies called plastids are found in the plant cells only. Green plastids containing chlorophyll are called chloroplast. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.